Welcome dear students and friends to this channel. So today I will discuss few important aspects of linked list, and also in previous three classes or lectures we discussed the concept of linked list, addition of a particular node into the linked list, deletion from the linked list at a particular location, and several other operations. Okay, so those who want to learn, they can refer my previous video. In this video also I will explain few important operations of singly linked list, and some basic stuffs related to what circular linked list and doubly linked list. Okay, double linked list. And in this lecture I will conclude the linked list part. So stay connected, and I would like to request those who are new to this channel or watching this video at the first time, so please refer my previous videos so that it will be comfortable to you and to understand. So let us start. So this is linked list part 4. So let us see programmatically. So the very first program is write a program which will take two linked lists as input and perform concatenation of those two linked lists. So it is very simple program. So what is given? So here two linked lists are given. Let us suppose this is what S1. So this is A, B, C, D and E. So there are 5 nodes in this linked list. So this is the first linked list, and second linked list is also given. Second linked list में क्या है? For example, let us say P. Again there are 3, 4 or 5 nodes, any number of nodes. P, Q, R, S and T. Okay, so let us suppose these are the two linked lists that is given. So what will be the output in that case? So concatenation of two linked lists. So output is what? Output is फर्स्टली हमें क्या करना होगा कि एक पॉइंटर सेट करना होगा इनिशियल पोजीशन पे. लेट अस सपोज एट दिस पोजीशन. सो दिस वी आर कॉलिंग इट एज एस. ओके, और ये कहां तक ले जाएंगे? पहली लिंक लिस्ट हमें एज इट इज कॉन्केटिनेट करना है या आउटपुट में चाहिए, तो हम सिंपली एक पॉइंटर सेट किया हमने. so it is what? S. So S is pointed to some S1 and we are moving S. So how long we are moving S? When S what is not equal to S next is not equal to null. S next is not equal to null. हमें लास्ट नोड तक मूव करना है. ठीक है, तो S नोड इज नॉट इक्वल्स टू नल. सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि S हमारा मूव करेगा, यहां से यहां मूव करेगा, तो हमें इसको आगे मूव करना है. ठीक है, तो S इज नॉट इक्वल टू नल, S इक्वल्स टू व्हाट? S नेक्स्ट. तो ये हमें करना है ना. तो in that case as will move further because it is not equal to means it is not last node है ना. So finally S will come here. So S next is not equal to null, condition false. Now इस node को हमें next linked list के address से attach करना है. So how to do this? So this is very simple task, that S of next, तो इसमें हमें क्या स्टोर करना है? S2 का एड्रेस. Okay, so now what will happen? This null will be created and in place of null this address is stored. So like this. Okay, and it is very simple. And finally return what? Return the starting address. What is the starting address? S1. So this is very simple code है ना. So just concatenation of two linked lists. So let us have a look. So it is P है ना, we are storing P है ना, whatever मैंने यहाँ S किया था, they are saying at P. So P equal to S1, and while P of next is not equal to null, so they are searching the what? Last node of the first linked list. Last node तक पहुंचना है P equal to P next करके. Then finally P next जब last में पहुंच गया तो P next में S2 किया और return किया S1. Okay, so in that case concatenation of two linked lists. So what is the time complexity?
so the time complexity in that case is going to be order of n, because हमें एक linked list entirely पूरी scan करना पड़ेगी. Let us suppose the very first linked list having n element, then we are anyhow supposed to cross n elements, है ना, and reaching at the end of the node, है ना, of the first linked list. Then attaching, so attaching will take constant time, so ultimately order of n time. Okay, now move to next. So the question says that write a program to insert intersection of two linked lists. So what is meaning of intersection? Intersection is something that, for example, there are two linked lists given. So it is suppose S1 and A and B. This is the third node C, this is fourth node D, and this is what, fifth node E. Okay, and this is what, suppose null part. Now another linked list is also given, say S2, and S2 में suppose for example it is A, okay, then it is F, it is F, it is D, it is G, and it is some sort of H, and this part is not. So what will be the output in that case? So the output in that case is what? Output is, let us suppose some S is the new linked list, तो उसमें इन दोनों का common, intersection means common element. Okay, so means ultimately what we are supposed to do, S1 intersection of S2, this operation we are performing. So S1 intersection S2 क्या आएगा? A आएगा इसमें, because A is common in both, and what else? It is B, and nothing else. So A and B, this part will come, and at last null. Okay, तो हमें क्या करना है, व्हाट विल बी द टेंडेंसी, कि यहाँ हम दो पॉइंटर सेट करेंगे, एक पॉइंटर यहाँ सेट करेंगे फर्स्ट लिंक लिस्ट पे और एक सेकंड लिंक लिस्ट पे पॉइंट करेंगे. ठीक है, फिर हमने क्या करना है, पहले जैसे यहाँ पॉइंटर सेट किया, लेट अस सपोज P, तो और यहाँ से पॉइंटर किया Q, तो हम P को पहले यहाँ फिक्स रखेंगे और Q स्कैन करेंगे, और जैसे हमें Q यहाँ P के डेटा और यहाँ इस सेकंड लिंक लिस्ट में Q का डेटा हमें मिल गया. ठीक है, तो हम उसको क्या कर देंगे, रिजल्टेंट में हम कॉपी कर देंगे और आगे बढ़ा देंगे वो पॉइंटर्स. ठीक है, वेरी सिंपल टास्क. तो यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ जो P और Q का डेटा मुझे सेम मिला, तो मैंने यहाँ A इसको कॉपी किया, ये डेटा और ये डेटा मुझे सेम मिला, तो यहाँ मैंने इसको कॉपी किया और फिर मैंने Q को एज इट इज सेट किया और P को फिर आगे बढ़ाया. ठीक है, फिर देन, है ना, तो फिर क्या किया मैंने, B के लिए फिक्स किया और यहाँ फिर इसको सर्चिंग किया. ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको दिख रहा है कि एक तो यहाँ सेटिंग कर रहा है, मतलब एक ये लूप यहाँ रन होगा फर्स्ट लिंक लिस्ट के लिए, और एक लूप हर बार, है ना, फर्स्ट लिंक लिस्ट के हर एलिमेंट के लिए सेकंड लिंक लिस्ट में रन होगा. ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल टास्क, है ना, इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली. Okay, now I have a look on code. It is very simple. So firstly, what is done? So R equal to S. तो जो resultant हमारा था, resultant is what? This. ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया, S, यहाँ हमने R सेट किया. ओके, so it is what? R equal to S and P किया S1 पे और Q किया S2 पे. While P is not equal to null, है ना, P is not equal to null means पहले लिंक लिस्ट के लिए, और while Q is not equal to null, so पहली लिंक लिस्ट के लिए हम दूसरा सर्च करने जा रहे हैं. ओके, so in that case what will happen कि कंडीशन चेक करना है, if P data double equals to Q data, अगर P data और Q data है, so let us assume a scenario. So it is what, it is your S1 and it is your S2, and focus है ना over here, and this is going to be your what, this is going to be your S. So initially let us suppose this is A and this is some element, this is A and there are some few elements. Okay, so finally what we are going to do according to this code, so this is pointed by what, P, this is pointed by what, Q, and this is pointed by what, R. Okay, so
and while p is not null, so p is not null. Q is not null, yes, of course Q is not null. तो p data equal to q data, yes, of course p data is a, q data is also a. तो क्या करना है हमें कि एस डेटा p डेटा को एस डेटा में कॉपी कर देना है, या p डेटा या q डेटा बोथ आर सेम. तो इसका डेटा मैंने एस डेटा में कॉपी किया. ओके, तो यहाँ एस डेटा में मैंने यहाँ कॉपी कर दिया a एंड s को आगे बढ़ाया. तो यहाँ मैंने s को यहाँ से आगे बढ़ा दिया. ठीक है, तो ये नेक्स्ट नोड पे चला जाएगा s. ओके, एंड p इक्वल टू p नेक्स्ट, तो p को आगे बढ़ाया और q को मैंने कहा s2 पर ही सेट रहने दिया. ठीक है, हो सकता है मे बी q देयर है ना सम आगे कहीं पहुंच गया हो, तो q को मैंने स्टार्टिंग पे कर दिया. तो अब मैं सेकंड एलिमेंट पे जाऊंगा, है ना, तो सेकंड एलिमेंट पे अगेन मैं फिर यहाँ सर्च करूंगा. बट अगर ये डेटा करेक्टेड नहीं है, मीन्स अगर p डेटा इज नॉट इक्वल टू q डेटा, तो हमें क्या करना है, सिंपली q को बढ़ाना है. तो इन दैट केस q विल बी इंक्रीमेंटेड. तो ये इफ कंडीशन, देन दिस इज व्हाट एल्स, कि अगर p डेटा और q डेटा सेम नहीं है तो q को हम इंक्रीज करेंगे सेकंड पॉइंटर को, और फाइनली फिर है ना, फिर हम कहा जाएंगे, इस इनर लूप पर जाएंगे. ठीक है, दिस व्हाइल लूप. और जब ये q कंप्लीटली स्कैन हो जाएगा, है ना, तो फिर है ना, देन व्हाट विल बी डन. सो आफ्टर दैट व्हाट, p विल बी इंक्रीमेंटेड. ओके, p विल बी इंक्रीमेंटेड एंड अगेन q इज गोइंग टू बी व्हाट, s2. तो q तो हमें s2 पर ही सेट करना ही पड़ेगा. ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल कोड. if you just want to go through, it is very simple code. Okay, simply intersection है ना, तो intersection means firstly हमें दो scans लगेंगे. So this is for what, first linked list, this is for first linked list, and this is for second linked list. Okay, so this will happen in that case. Okay, now if I talk about what time complexity for intersection. Okay, so intersection means let us suppose S1 था, intersection S2, ये ऑपरेशन करना था. So what will be the time complexity in that case? So clearly दिख रहा है कि यहाँ पर आपने दो लूप रन किए हुए हैं, और फर्स्ट लूप आपका let us suppose n एलिमेंट से, सेकंड लूप इज ऑल्सो हैविंग n एलिमेंट. तो फर्स्ट के लिए n टाइम, सेकंड के लिए n टाइम, थर्ड के लिए n टाइम, so overall n times है ना for each and every element. So order of n square will be the time complexity. Okay, now union of two linked lists. So union, what is the meaning of union? Union means there are two linked lists given. So let us suppose this is s1 pointed by s1, a, b, c, d and e. Let us take this one. Observe very carefully. You know union. Union is basic operation, set operations. Okay. So there is again second linked list S2. So what it is having? So let us take as an example. It is what, P, then A, then Q, then E, and this is what, null part. So resultant जो हमारा list है, resultant list, what will be the resultant list? So let us suppose this is what, S. तो resultant list में क्या होगा, पहले तो first linked list तो as it is आ जाएगी. So it is A, B, what, C and D and E. Okay, so this will be the output. So output is here. Output is what? Output is S1 union S2. तो in that case क्या किया मैंने पहले कि फर्स्ट लिंक लिस्ट को एज इट इज कॉपी कर दिया सेकंड लिंक लिस्ट में. ओके, तो n टाइम्स में सिंपली मूव हुआ यहाँ पे, तो यहाँ मैंने कॉपी कर दिया. ओके, नाउ आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन कि हम सेकंड लिंक लिस्ट के हर एक एलिमेंट के लिए फर्स्ट लिंक लिस्ट में सर्च करेंगे. इफ इट इज देयर देन वी विल नॉट इंक्लूड, और अगर वो नहीं है तो उसको हम इंक्लूड कर देंगे. जैसे फर्स्ट टाइम क्या मिला मुझे यहाँ p, तो यहाँ पे मैंने क्या ऐड कर दिया, यहाँ पे मैंने p ऐड किया. और देन फिर सेकंड एलिमेंट यहाँ a के लिए सर्च किया, a इज ऑलरेडी देयर, नो नीड ऑफ है ना एडिंग. एट द एंड q इज नॉट देयर, यस ऑफ कोर्स q मस्ट बी एडेड. So q must be added in that case, and after that what, e, so e is already there, so now this part will become what, null. So this is what, this is the intersection, है ना.
तो हमें क्या किया, पहले फर्स्ट लिंक को, फर्स्ट लिस्ट को एज इट इज कॉपी किया, सेकंड लिस्ट के हर एक एलिमेंट के लिए हमने फर्स्ट लिस्ट में सर्च किया, इफ इट इज प्रेजेंट देन नो नीड ऑफ एडिंग, एंड इफ इट इज नॉट प्रेजेंट देन ऐड एज द आउटपुट, है ना, एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट. सो इट इज वेरी सिंपल एल्गोरिथम. सो फर्स्टली, सो है ना, you can also write the program for the same. Now ultimately we are what showing the concept and also how much time it will take. So add first link list to the resultant list. So approximately it will take order of n time, है ना, because एक loop run करना पड़ेगा, first link list को complete cross करना पड़ेगा. फिर then second step is what, for every element of second linked list, second linked list के हर एक element के लिए check if it is present in first linked list or not. Okay, if it is present then skip, otherwise what, that element, otherwise what, add to the resultant linked list. If it is present then skip, otherwise add. So this is again take what, order of n10. So overall if I talk union of two linked list, so union of two linked list means S1 union S2. So the time complexity for the same what, so the time complexity for the same what, order of what, n square. Okay, because n is first and again we are searching each element of the second linked list in the first list, whether it is present or not, and adding simply. So for one element n, second element n, and of course there are assume a lot many elements are there in second list. So say n elements, so n times n is n square. So order of n square time complexity. So I hope that this is clear to you. These are the basic set operations, okay, which we have performed. So operations on linked list क्या हो सकता है, पहला मेंबरशिप. मेंबरशिप में क्या होगा, ऑर्डर ऑफ n. मेंबरशिप मीन्स एक एलिमेंट गिवन है, आपको एक लिंक लिस्ट में सर्च करना है, वेदर इट इज प्रेजेंट और नॉट, वेदर दिस एलिमेंट इज अ मेंबर ऑफ अ लिंक लिस्ट और नॉट. तो सिंपली आपको पूरी लिस्ट ट्रेवर्स करना पड़ेगी, वन बाय वन एलिमेंट चेक करना पड़ेगा, कंपेयर. सो इट इज ऑर्डर ऑफ n. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, कॉन्कैटिनेशन. सो कॉन्कैटिनेशन में देख चुके हैं. फर्स्टली कॉन्कैटिनेशन इज व्हाट, पहली लिस्ट एज इट इज मैंने रखा, लास्ट तक गया और उसका लिंक जो है सेकंड लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड से अटैच कर दिया. सो दैट इज द कॉन्कैटिनेशन. सो फर्स्ट लिंक लिस्ट हमें एंटायरली ट्रेवर्स करना पड़ा, तो ऑर्डर ऑफ n टाइम. यूनियन ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, वी सॉ ऑलरेडी. इंटरसेक्शन ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर. ओके, सो आई होप दैट दीज ऑपरेशंस आर क्लियर टू. नाउ write a program to print the given linked list in reverse order. So reverse order, okay. Or if you remember, then we already saw one program related to this, like write a program to print the reversal of the linked list. So that program is just doing the actual reversal. This is not the actual reversal. This we have to print what, linked list in reverse order, element of linked list in reverse order, and also in one scan, okay, not multiple scan. So what will be the tendency in that case? Just say as an example, let us suppose this is S, है ना, S is a pointer pointing to a linear or singly linked list which is having few elements. So let us take A, B, C, G and E. 5 nodes are there. Okay, so what will happen in that case कि हमें रिवर्स ऑर्डर में इसको प्रिंट करना है. तो पहले हम फर्स्ट नोड पे जाएंगे, तो फर्स्ट नोड ओके इट इज नॉट, तो हम इसको फर्स्ट नोड पे फिर नेक्स्ट के लिए कॉल करेंगे. ओके, इफ यू आर ऑब्जर्विंग देन रिकर्सिव कॉल मींस फर्स्ट का जो फर्स्ट नोड है, जहाँ करंट नोड है ना, उसका अगर नेक्स्ट फील्ड नल नहीं है, मींस लास्ट नोड पे नहीं पहुंचे, तो हम फिर आगे के लिए कॉल कर देंगे. फिर नहीं पहुंचे तो फिर हम आगे के लिए कॉल कर देंगे. ठीक है, फिर नहीं पहुंचे तो फिर हम आगे के लिए कॉल करेंगे, एंड देन फाइनली रीचेस एट द एंड. सो इट इज वेरी सिंपल that what we are supposed to do, that print reverse है ना, या print reverse. तो print reverse में what we are given, as given. Okay, simply s is only given, है ना, s is the only thing which is given, starting address. तो हम चेक करेंगे कि if s data, अगर हमारा s not data, s next मीन्स लास्ट नोड तक जाना है, s next. ओके, डबल इक्वल्स टू क्या मिल गया है, नल. अगर डबल इक्वल टू नल है मींस लास्ट नोड पे पहुंच गए. तो इन दैट केस व्हाट वी आर सपोज टू प्रिंट, वी आर सपोज टू प्रिंट व्हाट, इट्स डेटा. सो एज डेटा एंड रिटर्न फ्रॉम देयर. सो दिस इज द इनिशियल कंडीशन, है ना.
So we know recursive program is having initial condition. Else what will happen in that case? Else में means a linked list is having a lot many elements. तो हमें क्या करना है, फिर again call करना है next के लिए, ठीक है. तो next के लिए हमें call करना है. So what will be called? It is called like print reverse. और किसके लिए? as next के लिए, as next के लिए कॉल करना है. और फाइनली जब वापस आएंगे तो इसका डेटा भी प्रिंट करना है. सो प्रिंट as data. Okay, like this. So this code will work efficiently. This code will work efficiently. Okay. So if you are confused, then observe it very carefully. It is very simple code. Recursive program आप जानते हैं. What is recursive program? So this part is initial condition or termination, and this is a recursive step. तो अगर लास्ट नोड पे हम पहुंच गए हैं तो उसका डेटा प्रिंट करके रिटर्न करना है सिंपली. नहीं पहुंचे हैं तो अगले के लिए कॉल करते जाना है. लेकिन एक स्टेटमेंट इसमें पेंडिंग क्या है कि उसका डेटा प्रिंट करना. तो जब लास्ट तक आप पहुंच जाएंगे उसका डेटा प्रिंट करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे तो फिर प्रीवियस का डेटा प्रिंट करेंगे, फिर बैक ट्रैक करेंगे तो प्रीवियस का डेटा प्रिंट करेंगे. सो इन दिस मैनर ऑल द है ना डेटा ऑफ द ऑल द नोड्स इन रिवर्स ऑर्डर विल बी प्रिंटेड इन ओनली इन वन स्कैन. सो सी ऑब्जर्व दिस कोड. सो दिस इज द एस लिंक लिस्ट इज गिवन, and if s of next double equals to null, so this is what, this is the initial condition या फिर otherwise it is also known as what, termination condition, initial condition or termination condition. And this part is what, again the same, that if अगर last node है तो उसका डेटा प्रिंट कर देंगे सिंपली और रिटर्न करेंगे, और else पहले उसको कॉल करेंगे प्रिंट रिवर्स को, मींस दिस इज रिकर्सिव स्टेप. ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज रिकर्सिव स्टेप या रिकर्सिव कॉल. ओके, एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट इज व्हाट, उसका डेटा प्रिंट करना है. तो पहले रिकर्सिव कॉल्स होंगे, लास्ट पे पहुंच के जब रिटर्न स्टेटमेंट होंगे तो उसके बाद फिर क्या होगा कि ये इसका डेटा प्रिंट किया जाएगा. ओके, so this I am not going into that much detail. Why? Because there is I already taught you what, that recursion part and a stack part. That's why recursive function, it is very simple, having only two things, so initial condition and recursive step. So this is the initial condition and recursive step. Okay, so this code will work effectively in order to print what, in order to print reversal of the linked list, or in order to print the elements of the linked list in reverse order. Okay, so this is clear to you. Now next, write a program to perform polynomial addition using linked list. So as an example one, so see, this is polynomial 1 and this is polynomial 2, and this is the resultant polynomial. So what will be the answer in that case? 10x की पावर 5 और 1x की पावर 5. So क्या होता है polynomial addition में, अगर पावर सेम रहती हैं तो उनके कोएफिशिएंट ऐड हो जाते हैं, तो पावर्स के बिहाफ पे हमें चेक करना पड़ता है. ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 11x रेज टू द पावर 5 प्लस this will become 22x raised to the power 4 plus this will become what, 33x raised to 3, and this will become what, 40 and 4, it is going to be 44x square plus 55x and plus this is 66. So this will be the resultant answer. Polynomial addition, very simple. Okay, now I will show you, don't worry, how we are going to do this programmatically. Now see example 2. So in this case what will happen, that it is having x की power 10, but second polynomial is not having x की power 10. So the resultant will be what, 5x raised to the power 10 plus, now x raised to the power 5, x raised to the power 5, these are there, so just add those. So this will become 45x raised to the power 5 plus this is x square term, this is x square term, so it is 60x square, 30x square, 30x square. So we are just adding coefficients based on the power. If they are matching to the power, then matching in the terms of power, then we are simply adding. Otherwise just copying. If not matching means if किसी का power अगर नहीं है वहां पे तो हम उसको as it is copy कर दे रहे हैं. Okay, and then constant term is what, 40 plus 80 is going to be 120. So this will be the resultant term. Okay, now observe carefully. So here this is the struct poly, and now what is struct poly? So struct poly is something that it is having what, three fields. So coefficient, power and what, next field.
I will show you, don't worry. So this is P1. P1 is a polynomial. So what is there in that? So this is something like that. 5 is the what आपका कोएफिशिएंट है और पावर कितना है 3 और इसका नेक्स्ट फील्ड आगे जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट फील्ड आगे, फिर यहाँ 10 है और यहाँ पावर कितना है 2, फिर यहाँ नेक्स्ट फील्ड, फिर यहाँ कितना है आपका पावर 1 पे कोएफिशिएंट है 20 और पावर है 1 और नेक्स्ट फील्ड, और नेक्स्ट फील्ड पे आपका क्या है कोएफिशिएंट व्हाट 40, पावर कितना है इसका 0 और ये क्या होगा नल पार्ट. सो दिस इज व्हाट, दिस इज P1. एंड व्हाट अबाउट P2? तो P2 भी ऐसे सिमिलरली होगा. P2 इज व्हाट, P2 में 15 है पावर 3 पर, तो 15 पावर 3 और नेक्स्ट पे ये पॉइंट करेगा, तो नेक्स्ट इज व्हाट 20 एंड पावर 2 एंड नेक्स्ट इज व्हाट again this 30 or power 1, so 30 power 1 and next is what, so this is null part, and 70, so it is constant term is power 0. Okay, constant term is what, power 0. Okay, so this way we are representing the polynomial. तो polynomial में हर एक नोड में कितने होंगे, 3 ना फील्ड्स होंगी. तो फर्स्ट फील्ड क्या होगी उसकी कोएफिशिएंट, so this is coefficient, this is coefficient, let me write it very visible manner. So this is what, this is coefficient and this is what power term and this is what, this is next. Okay, so each node is having these. तो सिंपली हमें क्या करना है, इनको ऐड ऑन करना है, ठीक है, तो पॉलिनोमियल एडिशन परफॉर्म करना है. ओके, सो देखते हैं यहाँ 3 आपने क्या किया, 3 यहाँ पे लिस्ट ली हुई है या अदर वे ऑफ सेइंग 3 पॉलिनोमियल्स लिए हुए हैं, ठीक है, P1 P2 है और P3 हमारा रिजल्टेंट है, ठीक है. तो P3 को हमने R से पॉइंट कराया एंड वाइल P1 इज नॉट इक्वल टू नल एंड P2 इज नॉट इक्वल टू नल. अगर P1 और P2 नल नहीं है तो हम इस केस में क्या करेंगे कि अगर P1 का पावर P2 के पावर से मैच करता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज व्हाट P1 है ना, एंड दिस इज व्हाट P2 एंड दिस इज व्हाट P3. ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, वेरी सिंपल प्रोग्राम P3. ओके, तो अगर ये मैच करता है तो सिंपली हमें क्या करना है, ऐड ऑन करना है केवल. तो अगर ये मैच करता है, पावर मैच करना चाहिए ना, लेट अस सपोज दिस इज 3, दिस इज 3 है ना, और दिस इज 5 एंड दिस इज व्हाट 7. तो इनके पावर्स मैच कर गए, मींस ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 5x की पावर 3 एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग 7x की पावर 3. तो रिजल्टेंट आपको कितना आना चाहिए इनका, रिजल्टेंट वुड बी व्हाट 12x raised to the power 3. So this how will the code is working, that P power is double equals to what, P2 power. So both P1 and P2 power are same, then P3 power में P1 power कॉपी किया है और P2 power whatever है ना, दोनों सेम है, तो ये 3 कॉपी हुआ. P1 P3 के कोएफिशिएंट में P1 और P2 के कोएफिशिएंट ऐड ऑन होके आ जाएंगे, so it will become 12 है ना, एंड P1 को नेक्स्ट मूव कर देंगे, so P1 will move to what, next place, P1 will move to next place, and again P2 is also moved to what, next place, P2 is also moved to next place, and P3 is also moved to next place, क्योंकि हमारा P1 इन दोनों के एडिशन हो चुके हैं, ठीक है. So P3 is also moved to next place. So this is the what way how the things are going on. Okay, means if they are matching and if they are not matching, तो नॉट मैचिंग के केस में क्या होगा, लेट अस सपोज कि एल्स पार्ट में इफ दे आर नॉट मैचिंग एट ऑल, मींस अगर फर्स्ट आपका जो है P1 लिंक लिस्ट की पावर है वो अगर ग्रेटर है, ठीक है, तो हमें उसको रिजल्टेंट में कॉपी कर देना है सिंपली. जैसे ये P1 है, यहाँ पे P1 की पावर अगर है लेट अस सपोज ये है 5 है ना, और ये है 7, और ये आपका यहाँ क्या है, यहाँ आपका P2 है, P2 की पावर है 2 और यहाँ है 5, ठीक है, ये आपका लेट अस सपोज व्हाटएवर नल.
तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? दिस विल रिप्रेजेंट 7x की पावर 5 एंड दिस विल रिप्रेजेंट 5x की पावर 2. सो देयर इज नो, है ना, नो कंपैरिजन, मींस यू कैन नॉट ऐड दीज, क्योंकि हम पावर्स के बेस पे ऐड कर रहे हैं. तो हम क्या करेंगे सिंपली कि 7 वाला जो है P1 को एज इट इज कॉपी कर देंगे P3 में. तो P1 की पावर कॉपी कर देंगे, P1 का कोएफिशिएंट P3 में कॉपी कर देंगे, और P1 को हम क्या कर देंगे, P1 को हम आगे मूव कर देंगे. और P3 जो है, P3 मींस रिजल्टेंट जो है ना, रिजल्टेंट. सो रिजल्टेंट इज व्हाट? रिजल्टेंट इज P3. तो हमने यहाँ क्या किया, 7 कॉपी किया, 5 कॉपी किया, और P3 को क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया. नेक्स्ट, है ना. एल्स के केस में क्या हो सकता है कि अगर P1 की पावर बड़ा नहीं है तो फिर किसका पावर बड़ा है? P2 का पावर बड़ा है. तो हम सेम कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, सेम स्टेप्स P2 के लिए करेंगे. P2 का पावर कॉपी कर देंगे, P2 का कोएफिशिएंट P3 में कॉपी करेंगे, P2 को नेक्स्ट करेंगे और P3 को भी नेक्स्ट करेंगे. ओके, सो दिस else will work, and this is the end of this else, and this is what? This is end of while, end of while. तो ये while loop मीन्स ये ओवरऑल वर्क करेगा प्रॉपरली, है ना. बट इसके अलावा क्या केस हो सकते हैं कि ये फाइनली सारे के सारे एड ऑन हो गए. अब क्या होगा लास्ट में कि अगर P1 नल हो गया हमारा, ठीक है, मूव करते करते P1 नल हो गया एंड P2 दोनों नल हो गए, तो P3 के नेक्स्ट को भी नल कर देंगे और रिटर्न कर देंगे R को, रिजल्टेंट को. ठीक है, दिस विल बी रिटर्न. और एल्स पार्ट में क्या होगा कि अब एल्स पार्ट में क्या हो सकता है कि ये कंडीशन कहां से फेल होगी, या तो P1 नल ना हो या फिर P2 नल ना हो. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका यहाँ पे व्हाट P1, अगर P1 डबल इक्वल टू नल हो गया, ठीक है, तो P1 नल हो गया, तो आपका मीन्स क्या है, P2 नल नहीं हुआ. तो P2 नल नहीं हुआ है तो आप P2 को कॉपी कर देंगे, कॉन्केटेनेट कर देंगे किसमें, P3 में. ठीक है, और फाइनली रिटर्न कर देंगे. मीन्स आपका P1 लिंक लिस्ट ओवर हो चुका है. बट ये जो सिनेरियो होगा, ये सिनेरियो इस तरीके से होगा कि आपका ये यहां पर, ठीक है, यहां पे आपका P1 पहुंचा, ठीक है, P1 आपका आगे क्रॉस कर चुका है. ठीक है, P1 आपका आगे क्रॉस कर चुका है, और जो है आपका P2 इज स्टिल इन सम बिटवीन प्लेस. P2 यहां है. ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे कि हम P2 को रिजल्टेंट में क्या करेंगे, इसको हम कॉपी कर देंगे रिजल्टेंट में, और फाइनली रिटर्न कर देंगे R को. सो दिस, और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब कहाँ है, P2 एंड हो चुका है. तो P2 एंड हो चुका है तो P1 को हम एड ऑन कर देंगे, कॉन्केटेनेट कर देंगे P3 में और रिटर्न कर देंगे. So finally this is the what, end of the program. So I hope that this is clear. This is very simple program. And what about the time complexity? So if I say about the time complexity for polynomial addition, time complexity for what? Polynomial addition. So time complexity for the polynomial addition is going to be order of n. Simply we are running only one loop and checking few conditions. Okay, तो एक लूप रन करने में ऑर्डर ऑफ n टाइम. सिमिलरली पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो वेरी सिंपल. तो मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होगा, जैसे ये मल्टीप्लाई करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले कि हर टर्म को फर्स्ट पॉलिनोमियल की ईच एंड एवरी टर्म ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल इज मल्टीप्लाइड विद ईच एंड एवरी टर्म ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल. ओके, सो दिस वे मींस इसका हमें इससे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे भी एंड देन फाइनली इससे भी करना पड़ेगा, सभी जगह इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. फिर सेकंड टर्म का भी सेम, है ना, लाइक दिस. ओके, फिर थर्ड का भी सेम. तो अल्टीमेटली समझ में आ रहा है, एन स्क्वायर इसका टाइम होगा, है ना. तो एल्गोरिथम क्या होगी, every term of first polynomial is multiplied by every term of the second polynomial. Okay, so in this manner what, the time complexity is going to be what, time complexity is going to be order of what, n square. मीन्स पहले को हमें सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है n से, सेकंड को n से, तो n टाइम n से मीन्स ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर. सो इट इज आल्सो वेरी सिंपल प्रॉब्लम. तो अल्टीमेटली वी आर डीलिंग विद कॉन्सेप्ट. सो पॉलिनोमियल concept is clear कि how we are representing polynomial with the help of a singly linked list. So coefficient term is there, power term is there, and next field is there. So a node is having 3 parts. Okay, so I hope that these concepts are clear. Now move to what, disadvantages of linked list. Very important. So what are the disadvantages of linked list? Linked list means linear linked list, means single linked list. तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट फर्दर कॉन्सेप्ट की तरफ मूव कर रहे हैं. दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट डिसएडवांटेजेस. सो लेट अस टेक, दिस इज अ लीनियर लिंक लिस्ट व्हिच इज हैविंग
for the sake of example, it is having 4 elements like this. So what are the disadvantages? That once we are at a particular point, okay, we cannot reverse back. Means for example, अगर हम ये move करते करते s को हम अगर यहाँ ले आए और फिर s को हम यहाँ ले आए, तो we cannot go back. Now we cannot go back. We can't go back. Anyhow, we can't go back. So in singly linked list, at every node we can move only one direction, that is from a particular node we cannot go back. And the next disadvantage is what, कि last node जो है linked list का, उसका जो next field है that is null, that is not using efficiently, है ना, waste हो रहा है वो space. तो in singly linked list last node next part always what contain null. So that is in singly linked list last node next part we are not using it efficiently. So these are the disadvantages of what linear linked list or single linked list. So there is a concept of what circular linked list. So what is circular linked list? Circular linked list is this one, that if a linear linked list is like this, this is what S, it is A, B, C, D and E. Let us suppose this is the given linked list. Okay, तो अभी फिलहाल क्या था कि हमारे लास्ट नोड में अगर हम लास्ट नोड में फर्स्ट नोड का एड्रेस रख देते हैं, ओके, देन दैट पार्ट ऑफ दैट लिंक लिस्ट इज नोन एज व्हाट, circular linked list. Say for example it is 1000, it is 2000, it is 3000, it is 4000 and it is what 5000. तो यहाँ नल था इनिशियली, अब हमने क्या किया, यहाँ पर स्टार्टिंग नोड का एड्रेस रख दिया 1000. तो ये कहाँ पॉइंट करने लगेगा, दिस विल पॉइंट टू दिस लोकेशन. सो दिस इज नथिंग बट अ सर्कुलर लिंक लिस्ट. तो इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि नाउ वी कैन मूव, है ना, इन दिस लिंक लिस्ट. अगर हम कहीं आगे हैं तो हम वापस भी आ सकते हैं, ठीक है, वी कैन ट्रेवर्स बैक ऑल्सो. तो एडवांटेज ऑफ विद सर्कुलर लिंक लिस्ट इज व्हाट, कि वी आर यूजिंग लास्ट नोड नेक्स्ट पार्ट एफिशिएंटली. ये हम एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं स्टार्टिंग नोड का एड्रेस प्रोवाइड करके, एंड वी कैन ऑल्सो व्हाट गो बैक ऑल्सो. सो दिस इज व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी द एडवांटेज. बट देर इज वन प्रॉब्लम दैट अगर हम इसकी प्रोग्रामिंग ठीक से नहीं करेंगे तो वी विल गो टू व्हाट इनफाइनाइट. सो डिसएडवांटेज इज ऑल्सो देयर. सो डिसएडवांटेज व्हाट, कि द डिसएडवांटेज विद सर्कुलर लिंक लिस्ट, इट मे एंटर इनटू व्हाट इनफाइनाइट लूप if we don't write the code properly. If we are not writing the code properly, then we will go to infinite loop. Getting my point? Because it is having some loop structure. If you are not coding properly, then you will go to what, into the infinite loop. So this is the disadvantage, है ना. तो how to stop infinite loop? So with the help of what, with the help of head node. So what we are doing in that, so simply they are doing like, this is the head node. Okay, this is the head node. So head node में क्या है, जैसे यहाँ पे हमारा लिंक लिस्ट ओरिजिनली क्या था, ओरिजिनली लाइक सपोज A, B, then C, then it is D and then it is E. Okay, so this, और यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पे स्टार्टिंग नोड का एड्रेस था. Okay, so it is the starting node address. So this will point to what, will point to this location. Okay, and किस तरीके से हम स्टॉप कर रहे हैं इसमें, कि एक हेड नोड हमने इंसर्ट किया है और हेड नोड में हम कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रखते हैं, ठीक है. तो इन जैसे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं इसमें, तो 1 2 3 4 5 नोड्स हैं, तो यहाँ हम क्या रख देंगे 5. तो हेड नोड इज हैविंग सम व्हाट स्पेसिफिक और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, है ना. तो इसमें हम इनफाइनाइट लूप कैसे स्टॉप कर रहे हैं, बाय यूजिंग अ हेड नोड. तो किस तरीके से करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मतलब कितना इसमें मूव करेंगे. से फॉर एग्जांपल while, है ना, C, let us suppose this is a pointer pointed by C. तो while C यहाँ से मूव हो रहा है, ठीक है,
while C is not equal to what? 0. Counter है ना, some sort of counter. Then what? S equals to S next. Okay, like this. So by using these facilities, and we are what doing this. So this is some sort of counter. Okay, so in circular linked list we will add a special node at the start of the linked list, which is what known as head node. Okay, and head node data part will always contain what? Valuable information like number of nodes kitne hain linked list mein. So these type of information is always there. Okay, so these type of information is always there. बट अगर कोई लिंक लिस्ट अगर एम्प्टी है सो उसका क्या होगा? जैसे ये हमारा है हेड, तो हेड में क्या होगा फिर? एट दैट टाइम 0 होगा। वो किसको पॉइंट करेगा? वो सेल्फ खुद को पॉइंट करेगा। ठीक है, इफ सर्कुलर लिंक लिस्ट इज व्हाट? एम्प्टी, तो एम्प्टी के केस में कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, लाइक दिस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट। Now move to the important term. So what is important term? If we lose one pointer, with the help of another pointer we will what? Get it back, which is known as doubly linked list or double linked list. So what is that? कि अगर कुछ इस तरीके का सीन जिसमें कुछ इस तरीके का इंफॉर्मेशन मीन्स अगर हमारा एक पॉइंटर लॉस्ट हो जाए तो हम दूसरे पॉइंटर्स की हेल्प से उस पर हम मूव कर सकते हैं। तो दैट इज नथिंग बट नोन एज व्हाट? जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक डबली लिंक लिस्ट अज्यूम कर रहा हूँ है ना, 4 एलिमेंट्स का, लाइक दिस। ओके, सो दिस इज सपोज दिस इज हैविंग वैल्यूज a है ना, v and this is c and this is what? This is going to be d and some addresses are also there. So it is 1000, it is what? 2000, it is 3000 and it is 4000. okay, now what will happen? कि यहाँ पे हर एक नोड में कितने हैं? हर एक नोड में 3 पार्ट्स हैं। तो एक डेटा पार्ट है, एक लेफ्ट पॉइंटर है, तो लेफ्ट पॉइंटर हियर इट इज नल, और यहाँ क्या होगा? यहाँ लिखा होगा इसमें व्हाट? 2000, तो दिस विल पॉइंट टू दिस। और बी का जो लेफ्ट पॉइंटर है यहाँ लिखा होगा 1000। तो अगर हम एक पॉइंटर हमारा लॉस्ट भी हो जाता है ना, इफ वी लॉस्ट वन पॉइंटर then what? We are having another pointer to pointing the same है ना। so means flexibility is there that we can move है ना लेफ्ट एंड राइट इन दिस पर्टिकुलर what? लिंक लिस्ट। so हम कहीं भी इसमें मूव कर सकते हैं। this kind of facility is there. so and है ना this part is what? this part is linear. okay, तो यहाँ क्या लिखा होगा? यहाँ लिखा होगा आपका 2000, यहाँ होगा आपका 1000 and this place is having 3000 and this place is having what? 2000 and this place is having what? 4000. so this kind of scenario is there. तो यहाँ पे ये struct DLL इसको मैंने है ना, we are saying it as DLL, doubly linked list. it is having data part, left pointer struct DLL and right pointer RP, LP and RP. so this is the node है ना। now observe very carefully. so now we are dealing in what? doubly linked list or double linked list, which is having 2 pointer, left pointer as well as right pointer. so write a program to delete a node pointed by the current in the doubly linked list. so take this one, that this is what? a, this part is null and this is pointing to this is suppose b and this is pointing to this is suppose c and this is pointing to this is suppose what? d. okay, and this part is again null and this is pointing to this back, this is pointing to this back and this is pointing to this back. and let us suppose current is this one, there is a pointer which is pointing है ना, node pointed by current. तो हमें क्या करना है? इस नोड को हमें डिलीट करना है। ठीक है, या let us take this one as current है ना, whatever all are same. so this is as current. तो हमें इस करंट नोड को डिलीट करना है। ठीक है, ऑब्जर्व वेरी केयरफुली व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। तो डिलीट द नोड पॉइंटेड बाय करंट, तो हमें इस नोड को डिलीट करना है। सो इस नोड को डिलीट करने के लिए पहले क्या होगा? हमारे पास पॉइंटर है करंट, तो हमने क्या करना है पहले कि पहले यहाँ पे लिंक करना है। ये नोड डिलीट होगा मीन्स बी का जो राइट पार्ट है उसमें किसका लिंक पहुंच जाना चाहिए? डी वाले डेटा का लिंक। ठीक है,
सो हाउ वी कैन रीच टू बी राइट पार्ट, तो बी राइट पार्ट में हम कैसे पहुंच पाएंगे, बी राइट पार्ट में हम पहुंचेंगे करंट के लेफ्ट पॉइंटर पर गए, पहले करंट के लेफ्ट पॉइंटर हमने अगर रेफर किया तो हम इस नोड पर पहुंच गए। अब इस नोड का क्या रेफर करना है, राइट पार्ट, तो इस नोड का मैंने राइट पार्ट रेफर किया, तो ये यहां पे मुझे क्या लिखना है, यहां पे मुझे अपडेट करना है करंट का राइट, सो इट इज करंट ऑफ राइट, तो करंट का राइट मीन्स दिस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये यहाँ पॉइंट करने लगेगा दिस पर्टिकुलर, तो मीन्स ये लिंक ब्रेक हो जाएगा। फिर इसके बाद एक और लिंक मुझे यहाँ सेट करना है कि करंट का जो राइट है ना, उसके लेफ्ट वाले में मुझे क्या करना है, करंट का लेफ्ट का स्टोर करना है, ठीक है। तो करंट राइट पॉइंटर इज विच वन, करंट राइट पॉइंटर से हम यहाँ पहुंच गया, इसके कौन से पार्ट में, लेफ्ट पार्ट में, तो दिस लेफ्ट पार्ट, तो यहाँ लेफ्ट पार्ट में मुझे क्या रखना है, इसका नोड का एड्रेस, तो इस नोड का एड्रेस कहाँ से आएगा, इस नोड का एड्रेस मुझे मिलेगा करंट के लेफ्ट से, क्योंकि इसके लेफ्ट में है यहाँ पे, ठीक है। सो इट इज अवेलेबल इन करंट लेफ्ट पार्ट। सो नाउ व्हाट विल हैपन कि दैट दिस नोड विल पॉइंट टू व्हाट, दिस नोड, सो दिस लिंक गेट लॉस्ट, है ना। अब फिलहाल ये हो गए लिंकिंग, ये दोनों लिंकिंग होंगे। अब इस नोड को डिलीट करना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, फ्री कर दूंगा किसको, करंट को, बिकॉज करंट एक पॉइंटर है जो कि इस नोड पर पॉइंट कर रहा है, और करंट इक्वल टू क्या कर देंगे हम, नल कर देंगे फाइनली। सो दिस कोड विल वर्क एफिशिएंटली, ओके। सो आई होप दैट दिस यू आर गेटिंग दिस। तो हमने पहले क्या किया कि करंट के लेफ्ट पॉइंटर पे गए और उसके राइट पॉइंटर को हमने अपडेट कर दिया, ठीक है। तो आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते थे, आप करंट के पहले राइट पॉइंटर के लेफ्ट पे जाके फिर उसको अपडेट कर देते, क्योंकि हमारे पास दोनों तरफ के लिंक हैं, तो इन दोनों को आप, है ना, अकॉर्डिंगली, बस ये ध्यान रखना कि इसमें लॉस्ट ना हो कुछ, ओके। So I hope that this concept is clear. So again the program is written that current left pointer करंट के लेफ्ट पे गए, फिर उसके राइट पार्ट में क्या स्टोर करना है, करंट का राइट, तो ये राइट की लिंकिंग हो जाएगी। फिर करंट के राइट के लेफ्ट में मीन्स आपका जो राइट साइड में था उसके करंट लेफ्ट में, और फ्री कर दिया करंट को, नल कर दिया, ठीक है। सो दिस इज एग्जैक्टली द सेम, सो इट इज वेरी सिंपल, है ना, एंड सी द चेंजेस हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन। So this we are what doing using the double pointer, है ना, in doubly linked list. So doubly linked list is having two pointers, left pointer as well as right pointer. तो बहुत ही अच्छी flexibility है that we can move at any point, है ना, anywhere. Now write a program to delete a node at the end of the linked list. So it is also similar to that it is having again what this is a what doubly linked list. So again the doubly linked list is like this, and it is, suppose it is A, B and C and D, and this part is null, this part is also null, okay, and this will point to this will point to this, and this will point to this. now हमें क्या करना है, लास्ट नोड को डिलीट करना है एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। सो व्हाट वी आर सपोज टू डू कि हमें यहाँ स्टार्टिंग एड्रेस दिया है, लेट अस सपोज एस, ये लिंक लिस्ट का एड्रेस कहीं किसी की नोड का एड्रेस दिया हो सकता है, सपोज फर्स्ट नोड का दिया है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे कि लास्ट नोड पे पहुंचना है। तो लास्ट नोड पे कैसे पहुंचेंगे कि while s right pointer is not equals to what, null, तो हमें s equal to s right pointer मूव करना है। So in that case what will happen, so it is very simple case that s का right pointer is not equal to null, yes, so move this. S right pointer is not equal to null means some node is there at the right side, yes, move this. So S right pointer is not equal to null means some node is there, so move. So S right pointer is null, now this condition is false. तो अब हमें क्या करना है कि इस नोड को डिलीट करना है, तो इस नोड को डिलीट करने के पहले इसके प्रीवियस पार्ट में यहाँ नल स्टोर करना पड़ेगा। तो हाउ टू रीच ओवर देयर, तो यहाँ भी फैसिलिटी है हम पीछे मूव कर सकते हैं ना, बैक साइड में। तो कैसे मूव करेंगे कि S का लेफ्ट पार्ट, सो S लेफ्ट, तो S लेफ्ट की राइट पार्ट में हमने क्या स्टोर करना है, नल स्टोर करना है। तो दिस, नाउ दिस पार्ट बिकम नल, दिस विल नॉट पॉइंट टू एनीवेयर। और फ्री किसको कर देना है, सिंपली S को फ्री कर देना है, तो फ्री कर देना है हमको S। सो नाउ सी, ऑब्जर्व केयरफुली हाउ, है ना, एफिशिएंट इट इज। सिंपली few lines of code, 2-3 lines of code and you are getting all the things.
ओके, तो ये फ्री कर देंगे, सो दिस नोड विल गेट डिलीटेड, सो दिस इज द डिलीशन ऑफ लास्ट। नाउ ऑब्जर्व, तो यहां हमने क्या किया, पहले यहाँ p को हम एक पॉइंट करा देंगे यहां से ताकि हम रिटर्न कर पाए उसको, ठीक है। सो p को हमने पॉइंटर सेट किया, और while s right pointer is not equal to null, so s equal to s right, so this is the moving, and finally s के लेफ्ट पॉइंटर के राइट पार्ट में नल किया, फ्री कर दिया s को, और s इक्वल टू कर दिया नल। so this is simply deletion from the last node. okay, this is very simple again. now next one is write a program to add a node with data x after a node pointed by the current. so pointed by the current, so this will happen like this, that it is having like this, it is having like this, like this. okay, so we are having like a b, so this is data part a b c d and e. observe very carefully, है ना, and this is having some sort of links like this because it is doubly linked list, and this part is null because ultimately it is pointing nowhere. so this points to here, this point to this node, so these are the addresses. okay, likewise now so write a program to add a node with data x after a node pointed by the current. so let us suppose for example this is the current node, तो इसके बाद हमें x डेटा वाला नोड इंसर्ट करना है, तो ये x डेटा वाला नोड इंसर्ट करना है, तो x डेटा ये गेट नोड टाइप का सीन है ना, तो हम एक नोड बना लेंगे, फिर क्या करना है, हमको केवल लिंकिंग करना है, ठीक है। तो हमें लिंकिंग यहाँ प्रॉपरली करना है, तो लिंकिंग लेट अस सपोज दिस इज पॉइंटेड बाय p। ओके, तो हमें एड ऑन क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो कि करेंट सो फर्स्टली हम इस p के राइट पॉइंटर में सेट करते हैं, तो हम p का राइट पॉइंटर अपडेट करते हैं, तो ये किससे करेंगे, करेंट ऑफ राइट से। तो करेंट का राइट ये है, इस नोड का एड्रेस p के राइट में रखेंगे, तो p के राइट में यहां आ जाएगा, ठीक है, दिस लिंकिंग हैज डन। ओके, तो कीप इन माइंड यहाँ में लिंकिंग यहाँ पे बहुत सारी करना है ना, 3-4 लिंकिंग करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर देन क्या करेंगे हम कि इसी का लेफ्ट पार्ट जो है वो हम इसको p नोड का एड्रेस डालेंगे, तो कहाँ डालना है ये हमें स्टोर करना है, करेंट के राइट पार्ट में गए और उसके लेफ्ट पार्ट में गए, तो करंट के राइट मींस यहाँ, इसके लेफ्ट पार्ट मींस यहाँ किसका एड्रेस डालना है, p का, तो यहाँ सिंपली हमने p स्टोर कर दिया, तो ये कहाँ पॉइंट करने लगेगा, दिस विल पॉइंट टू दिस लोकेशन, दिस विल हैपन, सो दिस लिंक गेट लॉस्ट, है ना। अब प्रीवियस नोड की लिंकिंग करना है, तो हमें करंट के लेफ्ट में p डालना है, करंट के लेफ्ट पार्ट में p स्टोर करना है, तो करंट का लेफ्ट कहाँ पॉइंट करने लगेगा, यहाँ पे, तो ये लिंक ब्रेक हो गया, दिस लिंक, एंड फाइनली p के लेफ्ट में करंट स्टोर करना है, सो p लेफ्ट इज स्टोर्ड विद करंट, सिंपली है ना, पॉइंटर मैनिपुलेशन ओनली। सो p लेफ्ट में क्या स्टोर करना है, करंट, सो दिस विल पॉइंट टू दिस लोकेशन। ओके, सो दिस इज द व्हाट मैंने एक नोड डिलीट किया, आफ्टर नोड what x after a data pointed by the current node. So these 4 lines will work efficiently in that case. Okay, so very simple, doubly linked list, current integer x, so star p equal to get node बनाया मैंने, फिर again these 4 lines will work efficiently. ओके, तो ये आप किसी भी ऑर्डर में आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये ऑर्डर फॉलो किया है, आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, ठीक है। तो this will work efficiently, okay, this will work correctly. So I hope that this concept is clear to you, and now the last one, so this is a tricky question, so this question related to what, singly linked list.
सो डिलीट अ नोड पॉइंटेड बाय करंट इन द सिंगली लिंक लिस्ट. सो सिंगली लिंक लिस्ट है, सिंगली लिंक लिस्ट यू नो वेरी वेल that this is what S and this is what B node, it is C, it is D, it is E, and it is let us suppose F, and this part is what null. So it is singly linked list. और हमें क्या करना है, एक नोड पॉइंटेड बाय द करंट नोड जहां पॉइंट कर रहा है वो डिलीट करना है. सो लेट अस सपोज दिस इज करंट, तो ये नोड हमें डिलीट करना है. तो एक तरीका क्या हो सकता है, मैंने आपको प्रीवियसली भी डिस्कस किए हैं ये सारी प्रॉब्लम्स, कि हमें आप पॉइंटर्स को साइमल्टेनियसली दो पॉइंटर्स मूव करें और इसके पहले एक पॉइंटर रखें, और फिर हम यहाँ मैनिपुलेशन कर सकते हैं. बट है ना, ये इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है कि हम यहाँ क्या करें कि नेक्स्ट डेटा को प्रीवियसली कॉपी करते जाएं, तो ये लॉस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली. तो हमने क्या करना है यहाँ पे कि while ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, है ना, what I am doing here. And it is very interesting question asked in one of the interview examination. So while current next of next means current next of next is not equals to what, null. करंट नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल. तो करंट नेक्स्ट क्या है, ये इसका नेक्स्ट क्या है, ये इट इज नॉट नल, मींस इट इज सम एलिमेंट इज देयर. तो हमें क्या करना है कि करंट के डेटा में करंट नेक्स्ट का डेटा स्टोर कर देना है. सो करंट, ऑब्जर्व वेरी केयरफुली व्हाट आई एम डूइंग, करंट डेटा इक्वल्स टू करंट नेक्स्ट डेटा, करंट नेक्स्ट डेटा. तो करंट डेटा equal to current next का data. So this D will be copied over this C. So this D, so this C gets deleted. Now current को मुझे आगे move कर देना है. Current equal to what? Current next. So observe very carefully what is going on. तो current equal to current next. तो current कहाँ जाएगा मेरा, यहाँ पर आ जाएगा. फिर देखेंगे करंट नेक्स्ट मींस E और उसका नेक्स्ट मींस दिस F. सो दिस इज नॉट नल, इट इज F. यस ऑफ कोर्स नोड इज देयर. तो करंट डेटा में करंट के नेक्स्ट का डेटा मींस E कहाँ कॉपी हो जाएगा, यहाँ पर कॉपी हो जाएगा E. फिर देन करंट मेरा आगे मूव हो जाएगा. फिर चेक करेंगे करंट लूप कंडीशन अगेन, करंट नेक्स्ट क्या है, F. ये वाला नोड है ना, इसका नेक्स्ट क्या है, नल. दिस कंडीशन इज फॉल्स, मींस हम सेकंड लास्ट नोड पे पहुंच गए हैं. तो अब हमें क्या करना है, ये F को कॉपी करना है और लास्ट वाले को हम डिलीट कर दें, दैट्स इट, चलेगा यहां से काम. ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि करंट व्हाट डेटा इक्वल्स टू करंट नेक्स्ट डेटा, करंट नेक्स्ट डेटा. ऑब्जर्व वेरी केयरफुल, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. सो करंट डेटा इक्वल्स टू करंट नेक्स्ट डेटा. सो दिस इज रिप्लेस्ड विद व्हाट, F. And simply what, free, we are going to free the what next. So what is next, because current next, so current next means this is, है ना, this is freed, means memory deallocation will be there, और करंट के नेक्स्ट को क्या कर देंगे, हम नल कर देंगे. सो इट इज करंट नेक्स्ट इक्वल्स टू नल. सो दिस पार्ट गेट्स ओके. तो आई होप दैट दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, दैट मींस हम क्या कर रहे हैं इसमें कि सिंगली लिंक लिस्ट में हम दो पॉइंटर्स मूव ना करके जिस पर्टिकुलर नोड पे हमारा करंट पॉइंट कर रहा है उसको डिलीट करना है. तो अगले नेक्स्ट टू नेक्स्ट नोड हम चेक कर रहे हैं, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो डेटा कॉपी करते जा रहे हैं प्रीवियस नोड में, तो ऑलरेडी वो लॉस्ट हो गया. अब अगर हम ऑब्जर्व करें केयरफुली तो हमें जिस नोड का डेटा C था वो नोड डिलीट करना, तो ऑलरेडी C इज नॉट देयर, है ना. सो रिमेनिंग लिंक लिस्ट इज देयर. सो दैट इज द कोड फॉर दैट. व्हाइल करंट नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो करंट व्हाट, current data equal to current next data and current equal to current next. These two lines will work efficiently, and after that हम कहाँ पहुंच जाएंगे, लास्ट एंड सेकंड लास्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट. तो उसमें क्या करना है, करंट डेटा इक्वल टू करंट नेक्स्ट डेटा और फ्री कर देना है करंट नेक्स्ट को, और करंट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू व्हाट, नल.
So I hope that these concepts are clear to you. So we discussed a lot many things in this particular lecture, and specifically in the series of this linked list. So this linked list is covered in 4 parts: part 1, 2, 3 and 4. So part 1 deals with the basic steps, basic operations, or say basic fundamentals of linked list, है and also addition into the linked list means insertion of a particular node in the linked list. The second deals with the deletion part, second part 2, and part 3 deals with several operations that can be performed, okay, like sorting, searching and other operations. And this part exclusively for what? For doubly linked list, circular linked list, and basic steps like some set operations like intersection, union, membership operation, and blah blah, all things. So final. So we are at the end of this lecture. So if you are learning from these videos, then ultimately we are at the end of this linked list series. Now we are going to start the very new topic, that is tree data structure. So if you are learning from these videos, then please like, subscribe and share this channel with your learning community so that other will also get benefited. And happy learning to all of you. Stay safe.